Cloud food was us every day. But have you ever wondered, can we actually make it rain on demand? Sound like science fiction? Not anymore. Did you know the scientists and government around the world are using the technique called cloud seeding to artificially induce the rain even in desert? Yes, rain made by human from the dry lands of United Arab Emirates to the farmland of Rajasthan. India cloud seeding is helping fight droughts, reduce air pollution, and even refill empty dams like Jaipur Ramgarh Dam in 2024. Thanks to AI powered drones, but how this modern day remaking actually work? Can you really spray something into the cloud and expect it to pour down? Let's explore how tiny particles like silver iodides or salt release into the cloud to create the rainfall through the process that's a part of science, part magic, and completely real. Let's dive into the word cloud seeding. So, hi friends, today I'm just going to discuss about the cloud seeding. Recently, we got some news from the Delhi government and the Rajasthan government inducing this cloud seeding process. So, आज हम बात करेंगे क्लाउड सीडिंग क्या होता है. आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुना होगा सोशल मीडिया के थ्रू और समथिंग न्यूज़ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने प्लान किया कि क्लाउड सीडिंग करना है फॉर द रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर रीजन. सो आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा. सो टॉपिक इज क्लाउड सीडिंग. कैन वी मेक इट रेन? कैन ह्यूमन रियली मेक इट रेन? सो कुछ न्यूज़ थी. सो आई हैड कलेक्टेड हियर like China it again with artificial rain. China is advanced than us, so they are planning to something for the game and they want to reduce some pollution on that area. तो उन्होंने एक artificial rain develop किया था. And sudden in the previous 2024 आपने सुना भी होगा कि दुबई और यूएई में that rainfall, heavy rainfall has been done, which causes some flood reason. तो उसमें भी आपका ये क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन का यूज हुआ था. सो सिमिलरली दिल्ली गवर्नमेंट ने भी प्लान किया है आईआईटी कानपुर के साथ मिक्स होके कि अराउंड 3.2 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन हुआ है. मे बी इन जुलाई टू बिटवीन अगस्त ये पोस्टपोन होता गया, बट दे आर गोइंग टू बी प्लान फॉर डूइंग दिस वन. सो ये कैसे होता है? एंड सिमिलरली जयपुर डैम्स जो थे वहाँ पे सूखे थे, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक जेन एक्स एआई के साथ टाई अप करके वहाँ पे क्लाउड सीडिंग का मतलब प्रोग्राम डेवलप किया है. सो लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस व्हाट इज क्लाउड सीडिंग. Cloud seeding is a weather modification technique using the enhanced precipitation, either rain or snow, by introducing a specific substance into the cloud that stimulate the formation of water droplet or ice crystal. This होता क्या है कि इसमें कुछ एजेंट्स होते हैं लाइक बेस और समथिंग जो डॉपिंग की जाती है क्लाउड्स में, और उसके बाद उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन, एंड आफ्टर दैट रेनफॉल इज स्टार्ट. अभी डीप डिस्कस करेंगे कैसे वो प्रोसेस फिजिकल न्यूक्लियर प्रोसेस होता है. So science offer a powerful tools, artificial rain, also known as cloud seeding. Cloud seeding contain teeny droplet of water vapor, but not all cloud produce. मतलब सारी रेन क्लाउड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो कि आप देखोगे आसमान में जब क्लाउड होगा तभी ये क्लाउड सीडिंग पॉसिबल है. अदरवाइज क्लीन एयर, क्लीन आसमान में ये चीज नहीं हो सकता है. So what are the type of cloud? Generally there is cloud contain teeny droplet out, but not cloud all. Only the heavy rain and moisture is type like nimbostratus and cumulonimbus. ये जो क्लाउड्स हैं इन दोनों में ही पॉसिबल हो सकता है. निम्बोस्ट्रस जो होते हैं थिक ग्रे लेयर कवरिंग द स्काई, मतलब आप देखते होगे थोड़ा ग्रे टाइप का आसमान हो बादल से घिरा हुआ, उसमें वो डॉपिंग की जाती है. जैसे ये देखो कि आप प्लेन उड़ रहा है और इसमें ये सिल्वर आयोडाइड और इसमें डॉपिंग की जाएगी, जो उसके बाद कंडेंसेशन फॉर्म होगा. कंडेंसेशन यू नो इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड डिफाइंड यू हाउ द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज मेंटेनिंग दैट टू the rain has been going to be done. और cumulonimbus clouds like tall towering clouds like with an unveil. आप देखे होगे जब आप पहाड़ी इलाका में जाते हो तो white
पहाड़ों के ऊपर भी क्लाउड्स होते हैं, दैट ऑल्सो क्लाउड हैज बीन यूजिंग फॉर दैट क्लाउड सीडिंग. नाउ अब थोड़ा डीप डिस्कशन, हाउ डज इट वर्क. क्लाउड आइडेंटिफिकेशन, मेट्रोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई द सुटेबल क्लाउड दैट कंटेन इनफ मॉइस्चर. अब उसमें पहले एनालिसिस होती है कि क्या ये इसमें इम्प्योरिटीज और समथिंग मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है कि नहीं है. तो फर्स्ट होता है या तो आप एबव द ग्राउंड करो डॉपिंग, या फिर आप नीचे से कुछ जस्ट लाइक ब्लास्ट और समथिंग आप क्रैकर्स का यूज करो जिसमें ये जो सिल्वर आयोडाइड है उड़ के ऊपर तक जाए. अब सीडिंग एजेंट्स क्या क्या होते हैं. जनरली हम लोग सिल्वर आयोडाइड यूज करते हैं. ये आपका नॉर्मल क्यूब्स एसी ये इन द सेंस आइस वगैरह फॉर्मेशन में यूज होता है. सो पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, ड्राई आइस, CO2 ये नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं बिकॉज दिस इज टू मच टॉक्सिक कंपेयर टू द सिल्वर आयोडाइड. Aircraft, rocket or drone release chemicals such as silver. This is one. Condensation. These particles act as a cloud condensation nuclei or ice nuclei. Water vapor condense around them. और water vapor condense होता है around them and droplet become heavier. अब जब आप जानते ही हो कि जब वहाँ पे कंडेंसेशन होगा और जो वेपर जो होगा उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हो जाएगी तो द सेंस सैचुरेटेड हो जाएगा, देन रेन गोइंग. सो इन दैट प्रोसेस द ड्यू पॉइंट इंक्रीजेस एंड जो कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. अब ये फिजिकल न्यूक्लियस प्रोसेस है जो सिल्वर आयोडाइड प्लस H2 जो ये वेपर में होता है, ये दोनों मिक्स होते हैं, देन H2 सॉलिड हो जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो जाता है और डिपॉजिट ऑन AgI. देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन. केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि सिल्वर आयोडाइड रिएक्ट नहीं करता, does not react with water. It does provide a surface like catalyst or phase change. मतलब वो phase change बस उसका help करता है, just like a latent heat of latent transformation होता है. They act like a scaffold. मतलब एक step wise help water vapor freeze and from droplet or ice crystal. It's more for physical trigger than a chemical change. तो मैंने ये चीज बता ही दिया कि this is only for the helping to the gases form into the crystalline form. Silver iodide is used to cloud seeding because its structure is similar like a natural ice. So it helps the water vapor in cloud condense and freeze, forming a rain or snow. It does not react chemically. It just gives water something to latch on it. मतलब अपना फॉर्मेशन चेंज करेगा, वो फेस चेंज करेगा. दिस इज वन. सो ये डिफाइन हो रहा है. अब इसके बाद यहाँ पे कंडेंसेशन के बाद यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो जाती है. सो अब एप्लीकेशन देख लेते हैं. एप्लीकेशन क्या क्या है, जैसे रेन इन्हांसमेंट. अब UAE में बारिश नहीं होती थी, वहाँ पे बारिश हुई. एग्रीकल्चर इंक्रीज करने के लिए. एयर पोल्यूशन कंट्रोल. अब क्या होता है, जो एयर पोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो डस्ट पार्टिकल मूव करते रहते हैं तो उनको हेवी करने के लिए तो जो रेन होता है ड्रॉप होता है, देन पार्टिकल ड्रॉप डाउन टू द ग्राउंड. दिस इज चाइना ओलंपिक में 2008 में यूज हुआ था. इम्प्रूव एयर क्वालिटी. स्नो पैक ऑगमेंटेशन. मतलब आप जो स्नोफॉल के लिए भी यूज होता है. कहीं कहीं आप देखे होंगे किसी जगह कहीं आइस बनाया जाता है कोई शोरूम फॉर द जस्ट फॉर द प्लेइंग एंड टूरिज्म पर्पस के लिए. स्टॉर्म सेपरेशन और रिड्यूस स्टॉर्म और hailstorm impact research मतलब going on in this USA or something like that. This is all the example here. So ठीक है, इसकी एप्लीकेशन तो हम इसके कॉन्स भी क्या हैं. आर्टिफिशियल नेचुरल, क्योंकि ये नेचुरल है नहीं, नेचर के साथ हम लोग इम्पैक्ट करके इसे हम लोग यूज कर रहे हैं. और कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपने दुबई में देखा होगा, सुना होगा कि फ्लड आ गया था. मतलब इसका कोई आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो क्या ये सही होगा कि नहीं होगा. मतलब हो सकता है कि हेवी रेन हो जाए, मींस विच कॉज हेवी फ्लड इन द सिटी और सम इन द कंट्री. तो इसका कोई आउटपुट क्या आएगा ये कोई नहीं जानता, बट रेन इज पॉसिबल. वी आर डूइंग दिस वन. सिल्वर आयोडाइड एंड सॉल्ट आर जनरली कंसिडर्ड लो रिस्क बट एक्युमुलेट इन वाटर. अगर ये इकट्ठे हो जाएंगे तो दिस इज फॉर्मिंग सम सॉल्टी समथिंग लाइक दैट. तो ये बेस है. तो अब
इट्स इन फॉर द अगेंस्ट द नेचर हो जाएगा. सो दिस इज नॉट अ मेजर इशू. हाई कॉस्ट और एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है एयरक्राफ्ट या डोम या केमिकल को इंजेक्ट करना. नॉट एज वेल सक्सेस डिपेंड ऑन द एग्जिस्टिंग क्राउड कंडीशन. कभी कभी होगा कि आप डोपिंग करो और वहाँ पे सक्सेस ना हो, पानी ना हो, तो दिस ऑल हैज बीन गोइंग टू बी वेस्ट ऑफ मनी. So anyhow, but government are trying to whatever the requirement and whatever the benefit to reduce the pollution in the Delhi region. So I hope you understand my word. अगर आपको कुछ और इसमें डीप में जाना है, you can put on the comment and please subscribe my channel. Thank you.